نے بات کرنی ہے ایک ادارے کی جانب سے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس رپورٹ میں جنوری سے لے کر نومبر 2025 تک صنفی بنیاد پر تشدد کے واقعات بیسیکلی اس میں بتائے گئے ہیں، اس پر رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ ساحل 2025 رپورٹ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت چاروں صوبوں کے 81 قومی اخبارات سے جمع کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں، دین ول گو ٹو آور گیسٹ۔ اس میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات 2024 میں 5200 سے زائد رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 2025 میں 6500 رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ کیسز جو ہے نا ان کے اندر اضافہ ہوا ہے، آلموسٹ 25%۔ قتل کے بتائیں تو 1414 واقعات ہوئے ہیں، اغوا کے 1144 ہوئے ہیں، تشدد کے 1060 ہوئے ہیں، عصمت دری کے 586 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کل کیسز میں 32% میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کوئی گلے میں پھرتے ہوئے لوگ نہیں تھے یا پھر رشتہ دار نہیں تھے، ان کے اپنے گھر کے لوگ۔ گھر جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، جہاں پر جانے کے بعد آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، تنگ نہیں کر سکتا، یا پھر آپ کی جان اور مال جو ہے نا وہ محفوظ ہے، وہاں پر یہ سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹ کتنا زیادہ کیا جا رہا ہے یا پھر اوور آل ان کیسز میں اضافے کی وجہ کیا ہے، یہ ذرا جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قومی کمیشن برائے وقار نسواں کی چیئرپرسن ام لیلہ اظہر، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ اس ادارے کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیجئے، قومی کمیشن برائے وقار نسواں کب یہ اسٹیبلش ہوا اور یہ کب سے کام کر رہا ہے اور اوور آل مینڈیٹ کیا ہے اس ادارے کا؟ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ، آپ نے یہاں مجھے مدعو کیا۔ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن 2000 سے آپریشنل ہے، 2000 میں ایک آرڈیننس کے تحت اس کو تشکیل کیا گیا تھا، اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور پھر 2012 میں 2012 میں قانون کے حوالے سے اس کو پروٹیکشن ملی اور قانون کے دائرہ کار میں یہ ایک ادارہ جو تھا اس نے کام مزید اپنی مینڈیٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے کام کرنا شروع کیا۔ بیسکلی جو اس کا مینڈیٹ ہے وہ پالیسیز، خواتین کے حوالے سے جینڈر کے کانٹیکس میں جو پالیسی سازی ہو رہی ہے اس کو، اور قوانین بن رہے ہیں اس کو دیکھنا کرنا، گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، اسیسمنٹ کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو ریکمنڈیشنز دینا، اور کہیں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امپلیمنٹیشنز میں گیپس آ رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے سارٹ آف لائک ریسرچ بیس، اور اس میں ہم سارا جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹینسو ہے ان دا کانٹیکس کے ہمارے پاس سول کوڈ کی پاورز بھی ہیں، اور ہمارے پاس جو کمپلینٹس وغیرہ آتی ہیں ان کو ہم اس میں نوٹیفیکیشن بھی لیتے ہیں، ہم انکوائری بھی بلا سکتے ہیں، اور ذرا اس کا جو مینڈیٹ ہے کافی واسٹ ہے۔ سو بیسکلی جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان کو عورتوں کے حوالے سے، اور ظاہر ہے اس میں بچیاں بھی شامل ہیں، قوانین سازی کو سامنے رکھتے ہوئے بتانا کہ کہاں گیپس ہیں، ان کو ایڈوائز کرنا، اور کہاں پہ لکوناز ہیں ان کو لے کے چلنا۔ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہوگا کہ کیونکہ پاکستان نے بہت ساری انٹرنیشنل کمٹمنٹس پہ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جس میں سے جو امپورٹنٹ ہیں وہ سیڈا کی ریکمنڈیشنز ہیں، اور اس میں جتنی بھی چیزیں خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ہیں وہ مینڈیٹ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی NCSW کا۔ اس کے ساتھ پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو بیجنگ پلس بھی ہمارے پاس ہے، جس کو پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور 30 سالوں سے ہم اس کی بیسس کے اوپر ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے جو ہیومن رائٹس کے، وومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ اسی کانٹیکس میں اسٹیبلش کیے گئے۔ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان، اٹس اکراس دا گلوب۔ اور جو تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جو پاکستان نے بھی اس کو 2016 میں اڈاپٹ کیا تھا، وہ اس کی جو 2030 میں پاکستان نے سارا اس کو پریزنٹ کرنا ہے، اور گاہے بگاہے وہ کر بھی رہے، تو اس کے تناظر میں جتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ جو ہے وہ اویئرنیس کا بھی کام ہے، ریسرچ کا بھی کام ہے، پالیسی سازی، نئے قوانین کو دیکھنا، کہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب گیپس آ رہے ہیں، جو امپلیمنٹیشن میں گیپس ابھی آپ جو بتا رہی تھیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اچھا، جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ڈیٹا کن بنیادوں پر اکٹھا کیا، کن علاقوں سے سیمپلز لیے گئے، اور یہ تو وہ ڈیٹا ہوگا ام لیلہ صاحبہ جو رپورٹ ہوا ہے، اس میں سے بہت سارے ان رپورٹڈ کیسز اس طرح کے سینیریو میں زیادہ ہوتے ہیں۔ میں دیکھیں آپ کی بات سے ابھی آپ نے ساحل کی رپورٹ کا ذکر کیا، میری نظر سے بھی گزری تھی، اس طرح کی 2-3 اور رپورٹس بھی ہمارے پاس، ابھی کل ہی ہماری 2 مشاورتی اجلاس ہو رہے تھے، کل اور پرسوں، ہمارے پاس ڈیٹا آتا رہتا ہے، کیونکہ خود بھی پاکستان کا جو جینڈر پیرٹی کا ڈیٹا ہے، جو پاکستان پچھلے سال آپ کی شاید نظر سے گزرا ہوگا، اسلام آباد کی جینڈر پیرٹی رپورٹ کو فائنلائز کیا گیا تھا، اور پھر باقی صوبوں نے بھی اس میں، پنجاب تو کر رہا ہے پچھلے 8 سالوں سے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئی، اور اب جو ہے 2026 میں نیشنل جینڈر پیرٹی رپورٹ پاکستان کی پہلی بننے جا رہی ہے۔ ڈیٹا کی جو آپ نے بات کی، میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ ابھی ہمارے پاس یہ ڈیٹا جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
लोग अभी भी रिपोर्ट नहीं कराते और ये वो रिपोर्टेड केसेस होंगे। मैंने क्योंकि आपने मीडिया की बात की तो मीडिया में जो रिपोर्टेड केसेस हो रहे होते हैं वो मीडिया की अपनी एक चल रही होती है, लेकिन जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं जो लॉ प्रोटेक्शन को देख रही हैं उनके पास जो केसेस आते हैं हमारे पास वो सारे डेटा मौजूद है। उसकी ऑथेंटिसिटी उसको सामने रखते हुए फिर पॉलिसी साजी को देखा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इतना डेटा बढ़ता क्यों जा रहा है। पहले तो अगर हम 20 साल पहले देखें तो हमारे पास रिपोर्टिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो रिपोर्ट होती ही नहीं थी। तो डेटा हमें फराहम कर रहा है कि हाँ ये केसेस हो रहे हैं और हर जगह पे मौजूद हैं, हर जगह पे ऐसे केसेस हो रहे हैं। उस वक्त भी होते थे लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती थी। जिस तरह एसिड का केस मैंने खुद डील किए हुए हैं केसेस, इसलिए मुझे पता है। डोमेस्टिक वायलेंस के, तो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ लाने के पीछे भी ये केसेस को सामने लाया गया और अब वो बाकायदा उसकी हमारे पास NCSW ने इसको स्टैंडर्डाइज इंडिकेटर्स बनाए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें मैप करने, क्योंकि इससे पहले तो ये घरेलू झगड़ा समझा जाता था। तो डेटा का होना और डेटा का बढ़ना ये एक हैरानकुन बात ज़रूर है, लेकिन इसमें मुस्बत पहलू ये है कि अब रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। अभी भी आपने बात की हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन हम अगर लो इनकम डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएँ तो वहाँ पर भी ये मैकेनिज़्म ख़वातीन तक रसाई नहीं है, ख़वातीन की उन इदारों तक रसाई नहीं है जहाँ पर रिपोर्ट नहीं की जाती, अवेयरनेस वोकल भी उस तरह से। और दूसरा एक हमारा जो कल्चर है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ओपनली कि हम घबराते हैं रिपोर्ट करते हो। जिस तरह हिरासगी के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से जो कानून 2010 में आया तो उसमें पिछले कितने सालों में हमें ये एहसास हुआ कि लोग रिपोर्ट नहीं करे, क्योंकि उनको था कि अगर हमने अपने ही काम की जगह पर लोगों के खिलाफ हमने रिपोर्ट करनी शुरू की तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। डेफिनेटली। तो फिर पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपको जो है ना महसूस होता है कि सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, पूरी इंडस्ट्री के अंदर मेरा अब ये समझने की ज़रूरत है कि इस लॉ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इसलिए कि औरतें पाकिस्तान में आधी आबादी हैं और उनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं, लेकिन काम की जगह पर अगर वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगी तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस कानून की इसलिए ज़रूरत पड़ी। अब वो प्रोटेक्शन दे रहा है सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को भी, क्योंकि उसमें दोनों जेंडर शामिल हैं। वो इससे हो चुका है। हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, लेट्स एक्सेप्ट दैट, ठीक है। अभी तब्दीली आ रही है, इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट। हाँ, तब्दीली आ रही है, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। डेफिनेटली उसके अंदर इस तरह के सेशंस बहुत मानी रखते हैं लोगों को एजुकेट करने, ख़वातीन को एजुकेट करने के लिए। ये जो नंबर सामने आया जिसमें ज़्यादातर घरों के अंदर इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, क्या ऐसा कोई डेटा मौजूद है जिसमें ख़वातीन ने आकर रिपोर्ट किया, अभी कुछ हुआ नहीं है, तशद्दुद उस तरह से हुआ नहीं है, चाहे वर्बल हो या फिर फिजिकल हो, किसी खातून ने आकर रिपोर्ट किया हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा हो सकता है? हाँ, मीडिया की जीनत बन जाता है, लेकिन इस इदारे के पास आकर क्या आपके पास ऐसे नंबर्स मौजूद? हमारे पास देखिए नंबर्स तो मौजूद हैं और जो हमारे पास आते हैं ना तो हम उसको केसेस को आगे सामने नहीं रखते। वो हमारे क्योंकि साइको सोशल काउंसलिंग का है और अभी हमने रिसेंटली 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में अपनी एक ऐप भी लॉन्च की है कंप्लेंट मैकेनिज्म की। वो सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी पर है। वो हमारे पास है अभी रिसेंटली हमारे पास पिछले 6 महीने में मैं देखूं तो ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं जिनको इदारों ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो कमीशन के पास आए हैं, हमने उनको सपोर्ट किया। और इस तरह के केसेस थे बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इदारों के ख़वातीन की जिनके साथ घरों में तशद्दुद हुआ है और वो रिपोर्ट करवा रही हैं, उनको वहाँ पे रसाई नहीं मिल रही, वो हमारे पास अल्टीमेटली होता है कि उन ख़वातीन को वापस उसी घर में जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है और उसकी बच्चों को कस्टडी का मामला था। फिर ऐसे केसेस आए जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस में रात के टाइम घरों से निकाल दिया गया और अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ, तो वो हमारे पास जो राब्ता है टेलीफोन का या हमारे पास वो आते हैं तो हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब वो केसेस हमारे पास होते हैं, हम उनको हिडन नंबर्स में दे रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो हेल्पलाइन का सेंटर बना हुआ है ना, उसमें लोग डायरेक्टली आते हैं, वहाँ पे मशावरत के लिए आती हैं ख़वातीन, और वो रिपोर्ट जो है वो हमारी जो पुलिस की अथॉरिटीज़ में वो केसेस रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं करना चाहते। वहाँ पे उनको सहूलत चाहिए, साइको सोशल काउंसलिंग चाहिए और वो उस तरीके के साथ जिसको कहते हैं ना आर्बिट्रेशन के साथ उनको किया जाता है। कुछ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, थोड़ा अवेयर कर देते हैं। देखिए अगर वो वापस जा सकती हैं घरों के अंदर रहते हुए, उनको जो मसाइल है उनको हल किया जा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज वो रिपोर्ट नहीं करना चाहती, उनका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उनको प्रोटेक्शन दें और अगर वो खुला की तरफ जा रही हैं या अपने इनहेरिटेंस का केस कर रही हैं या बच्चों की कस्टडी का केस है, कानूनी तौर पे उनको सपोर्ट किया जाता है, रिपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो लीगल सेल है वो फिर इस तरह का सपोर्ट करता है, वो डेटा में नहीं शामिल है। अच्छा, हिडन रखा जाता है। अभी हमने इसी पे बात की थी कि वो पिछले 20 सालों से सेंटर चल रहा है। 20 साल तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ शायद, लेकिन इसी तरह की मुझे याद पड़ी है फिगर्स, 10 साल से तो चल रहा है, लेकिन वो हमने डेटा अपने मेजर डेटा में नहीं डाला। हालांकि वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हुकूमती इदारों के लिए बताने के लिए कि सेल्स मौजूद हैं। आप अगर रिपोर्टिंग से घबराते हैं और आप रिपोर्ट नहीं कराना चाहते और आप किसी और तरीके से उस मसले का हल करना चाहते हैं
This is an open forum. This is an open forum. बिल्कुल सही है. अच्छा, ये जो डेटा आपके पास है इसमें छोटी बच्चियों का भी डेटा है, क्योंकि मेड्स घरों में रख लेते हैं, अंडर एज बच्चियां होती हैं, वो भी इसमें शामिल है? देखिए हमारे पास जो डेटा है ना एडोलेसेंट्स तक हम देख रहे हैं, और अगर केसेस इस तरह के आते हैं हमारे पास तो हम रेफर कर देते हैं नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स को, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स उसको फिर देखता है, क्योंकि चाइल्ड लेबर के केसेस जो हैं वो देख रहा है. तो एक रेफरल बना हुआ है विद इन द मिनिस्ट्रीज. और अब इस कंप्लेंट मैकेनिज्म के साथ जो होगा कि नेशनल कमीशन जो है वो डायरेक्टली देख रहा होगा, और हम जितने भी रेफरल मैकेनिज्म्स हैं कोई 18 से 21 तक के मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर ही, उन सबको हम एक तरफ ले आएंगे ताकि वो रेफरल मैकेनिज्म बहुत आसानी से चल सके. एक जो इंक्लूजन हुई है वो मैं आपको बताती चलूँ आज के दिन के मुनासबत से, क्योंकि ये जो 16 दिन मना रहे हैं हम, इसका जो मेन थीम है वो डिजिटल वायलेंस के ख़िलाफ़ है. तो नेशनल कमीशन ने टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे भी बहुत ज़्यादा बारीकी से देख रहा है, और इसमें हमें अंदाज़ा है कि एक तो हमारी रिसर्च आ रही है वो इंशाल्लाह जनवरी फेब में हम लॉन्च करेंगे. उसके बेसिस के ऊपर जो हमारे पास पहले जो काम हुआ था कंसल्टेशन प्रोसेसेस में से चीज़ें निकली थी, औरतों को हम पढ़ा के एम्प्लॉयमेंट की तरफ ला रहे हैं, और उनके साथ हम AI को, टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो सिलसिला है वो हम उनको वैसे तैयार नहीं करें. सो हमारे पास जो केसेस आए अभी आप पिछले कुछ अरसे में देखेंगे तो हमें 2-3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट बड़े मीडिया ने हाइप किए. सो वो हमारे लिए पेशखेमा बना कि हम इसमें देखें कि हम अवेयरनेस कैसे शुरू कर सकते हैं. तो हमने एक कैंपेन लॉन्च की है, उसके 7 हमने कोई प्रोटोकॉल्स SOPs आइडेंटिफाई किए हैं कि किस तरह हम अपनी नई जनरेशन को समझा सकें कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें लेकिन मुताद तरीके से. अच्छा, सो मेनी क्वेश्चंस और वक्त हमारे पास जो है ना बड़ा काम होता है. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे तो सारा दिन बात की इंटरेस्टिंग और उसके साथ ज़्यादा ना कंसर्निंग ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें अपने इर्द गिर्द ख़वातीन नज़र आ रही होती हैं, और आप जैसी ख़वातीन को देखकर ख़वातीन उम्मीद पकड़ती हैं कि देयर इज़ समवन हु इज़ लिसनिंग टू अस और हमारी मदद करने के लिए तैयार है. ये जो आपने डिजिटल वायलेंस की या फिर ट्रोलिंग की या फिर ऑनलाइन हरासमेंट की बात की, इसका दायरा बहुत वसी है. लाइक आप कहाँ पर जाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ तक ये हरासमेंट है, इसके बाद ये हरासमेंट नहीं है. इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि इस पर कितना काम हो रहा है, एंड देन इन द एंड ख़वातीन जो चाहती हैं रिपोर्ट करना वो कहाँ पर रिपोर्ट कर सकती हैं, इसके बारे में भी बता दीजिए. देखिए सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन था कि ये जो मालूमात है इस पे तो हमने एक सीरीज़ शुरू कर दी. अभी हमारी एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है, हमारी वेबसाइट पे होगी, आपको फेसबुक पे मिल जाएगी, जो खुद ही के नाम से सीरीज़ है कि क्या जो ये ऑनलाइन हरासमेंट में टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस लोगों को पता भी नहीं है तो वो कैसे समझें. वो पहली सीरीज, उसके बाद फिर वो चलेंगी. दूसरा ये कि हमारी कंप्लेंट सेल का जो एक ऐप है वो भी लॉन्च कर दिया हो गया हुआ है, वो गूगल पे आपको मिल जाएगा नेशनल कमीशन का. आप उसको भी डाउनलोड करें और अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाएं, वो कॉन्फिडेंशियल होगा और फिर उसके साथ बैक एंड पे ही होगा. अगर आपको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर हमारे नंबर्स हैं हमारी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, आप वहाँ पे कर सकते हैं. हमारी हेल्पलाइन अभी चूँकि हमने अभी इसको लॉन्च नहीं किया, नंबर वो भी आ जाएगा, लेकिन आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. हमारा लीगल सेल वहाँ पे मौजूद है, हमारे साइको सोशल काउंसलर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और हम डायरेक्टली पुलिस के साथ बहुत सारे केसेस इस तरह के जो होते हैं इमरजेंसी में उनको डील करते हैं. अच्छा, दूर दराज रूरल एरियाज़ में रहने वाली ख़वातीन जो जिनकी इंटरनेट में भी शायद एक्सेस उस तरह से नहीं है, वो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए हमारे पास ना, जो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत सारे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के केसेस आए हैं, और ये सारे इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा से और इंटीरियर पंजाब से हमारे पास आते रहे. हमने उनको कुछ को तो हमने डायरेक्टली खुद डील किया और उनको रिजॉल्व हो गए, कुछ जो है फिर हमने प्रोविंसेस में भेजे. तो जो हमारा मैकेनिज्म जो है ना रेफरल का वो चलता रहता है, और जो भी हमारे पास केसेस, जिस तरह आपने बच्चों को कहा केसेस आ रहे होते हैं, हम रेफर कर देते हैं फौरी तौर पे, और फिर उसको फॉलो अप भी करते हैं. इदारे मिलकर काम करें. जी बिल्कुल, रेफरल क्यों कोऑर्डिनेशन के साथ, और हम कोशिश ये करें कि कोऑर्डिनेशन के साथ करें, कोई री इन्वेंटिंग द व्हील वाली बात ना हो, क्योंकि इसमें वसाइल भी लगते हैं और इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है. तो इस प्रोसेस को भी हम ज़रा ज़्यादा रॉबस्ट कर रहे हैं, और नेशनल कमीशन की वेबसाइट पर आपको सारी मालूमात भी मिल जाएगी. नई सीरीज़ भी जो आ रही हैं उसमें हम चाहेंगे कि आप लोगों के पास भी अगर आती हैं तो आप इसको स्प्रेड करें मैसेज को, क्योंकि ये अवेयरनेस का और बिहेवियर चेंज का जो सारा सिलसिला है ये जारी रहेगा इस IT के साथ. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने इसको अपनी ताकत बनाना है, इससे डरना नहीं है. वेबसाइट का नाम बता दीजिए, फिर वो सोशल मीडिया पर भी हम ncsw.org.gov. ओके, ठीक है. ncsw.pk.gov. ncsw.org.pk. ncsw.org.pk. अगर